Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today uh, we do question answer of chapter 20 Media, the mainstay of democracy. So let's be started. Question part A, take the correct option. Question number 1, paper was invented by the, so your right option is C, Chinese is your right answer. पेपर जो है चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. नंबर 2, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ प्रमोटेड, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अकाउंटेबिलिटी. ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, information provided by media should not be, so your right answer is based. Okay, option C is your right answer. Now question number 4, who among the following is not involved in the process of telecasting the news? So your right answer is option D, technician. Technician is the right answer, option C, D. Okay, question number 5, which country did Johannes Gutenberg belong to? Answer option A, Germany. Okay, Germany is your right answer. Now part B, fill in the blanks. Media has brought dash to live where technology is media. Answer people. Okay, people is your right answer. Fill in the blanks with people होगा. Then next, Chinese influenced the development of dash by inventing paper. So your right answer, printing. Okay, printing is your right answer. Now number 3, television affects people perception and dash. तो योर राइट आंसर इज़ ओपिनियन, क्योंकि टेलीविज़न से क्या है, पब्लिक पे इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो अपना सोच विचार जो भी है उस टेलीविज़न से देख के, न्यूज़ देख के उसे बहुत सारा कुछ नॉलेज वो गेन करता है, या फिर बहुत सारी जानकारी उसे मिलती है किसी भी पर्सन को. तो ये क्या है, एक उसके ओपिनियन को भी चेंज करता है. एक तो उसे नॉलेज मिलती है तो उसका ओपिनियन भी चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स होगा वो अपने ओपिनियन में चेंज करता है. Now next number 4, media should not dash a class, person or an organization. So your right answer is follower. Okay, follower. Then next number 5, the right to information has promoted dash and accountability. So your right answer is transparency. Okay, transparency is your right answer. So fill in the blanks. Number 1 answer is people. Number 2, printing. Number 3, opinion. Number 4, followers. Okay, number 5, transparency. Okay, number 4, follower, then transparency is your right answer. Now part C, take the correct option. Number 1, media influenced our beliefs and attitude. So राइट आंसर इज़ ट्रू, क्योंकि मीडिया जो है आपके बिलीव्स जो है, एटीट्यूड जो है उसको इम्प्रूव करता है, जो भी उसमें चेंजिंग लाता है. तो मीडिया जो का है बहुत ही बड़ा काम है इन सारी फील्ड में. जो भी आपके एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर्स या फिर ओपिनियन जो भी कुछ चेंज होता है वो मीडिया के पे बहुत कुछ डिपेंड है. क्योंकि आप जो भी न्यूज़ में देखते हो, टेलीविज़न पे देखते हो, उसके अगेंस्ट ही आप कोई भी जो है अपना व्यू लेते हो कि मुझे क्या करना है, या फिर देश में क्या हो रहा है, या फिर हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या जो भी है, किसी
जो पार्टी पॉलिटिक्स है या पार्टीज ने जो नेता हैं उसके बारे में भी आप व्यू इस बेसिस पे आप लेते हो, ठीक है। नंबर 2, RTI वॉज पास ड्यू टू द demands of various organization and movement. So your right answer is option. Right answer is true. Okay. Now next, number 3. Media is like a watchdog in a democracy. It is true. Now number 4. Freedom of speech and expression has no limitation. It is false. क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ के बारे में जैसे बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने स्पीच में बोलने के लिए छूट, देन एक्सप्रेशन हैज़ नॉट लिमिटेशन, नो लिमिटेशन, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप जो चाहे जब चाहे कहीं भी बोल सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये फॉल्स है। ओके, लिमिटेशन है, आपको क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेशन देना है, क्या आपका जो है फ्रीडम स्पीच के अगेंस्ट में है, तो ये सारा कुछ एक लिमिट में है और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप कुछ भी कहीं भी नहीं स्पीच दे सकते हो, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। नंबर 5, अ वेरी बिग शेयर ऑफ इंडिया मीडिया इज ओन्ड by political parties. It is also false. Okay, so number number 1 is true, number 2 is also true, number 3 is true, the number 4 false, the number 5 is also false. Now our part C is completed. Next, part D, answer the following question in brief. Question number 1, define media. Okay, so your answer is the term of media is the plural of medium. It refers to various means to communication that help the communicating to a large number of people at the same time. Radio, television, cinema, newspaper, except for some of the means of communication. ओके, तो ये सारा जो है हमारे किसी भी कम्युनिकेशंस का मीन्स है, ये जानकारी मिलने का कुछ भी है जो हमको इसी के बेसिस पे मिलता है। क्या क्या है वो? रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, ये सारा जो है हमारे कम्युनिकेशन का साधन है जिसके बेस पे इसके द्वारा आप किसी भी बात को किसी तक पहुंचा सकते हो। आपको किसी बात की जानकारी कैसे मिलती है? अकॉर्डिंग टू न्यूज़। ओके, टेलीविज़न के थ्रू पता चलता है। तो ये सब क्या है? अपना जो कम्युनिकेशन, अपने बात को किसी तक पहुंचाने का एक अच्छा कम्युनिकेशन का सोर्स है। ओके, तो मीडिया जो है बहुत ही हमारे लिए कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा स्कोप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज मीडिया कॉल्ड अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी? सो योर आंसर इज, in a democracy, media play significant role in creating awareness among the mass. It creates public opinion about the burning issue of country, expose scandal, and build the confidence of the people. It also ensures that the political power, other parties, and powerful groups do not step beyond their limits. It is therefore media is called a watchdog of democracy. Question number 3. In what way does the cinema affect our views? So your answer is, cinema play an important role in creating awareness about social evils, political malpractices, economic exploration, and the fact-changing Indian society and its value system. Some films impact valuable messages and thus leave a deep impression on us. We begin to think in the same way and try to do accordingly. तो बहुत सारे आप पिक्चर्स
जैसे सिनेमा जो है वो क्या करते हो, बहुत सारे सिनेमा में आप ऐसा देखते हो पिक्चर्स में कि जो भी आप देखते हो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, यदि आपको वो फीलिंग, आपको आपका ओपिनियन उसके प्रति अच्छा है तो आप उसको फॉलो करने का, उसको कॉपी करने का कोशिश करते हो। तो ये सारा क्या है कि मीडिया जो है, मतलब सिनेमा जो है, हमारे व्यू, हमारी सोच को देखने वालों के मतलब विचार पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, पिक्चर्स में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। जैसे वो फैमिली का हो, स्टेट का हो, कंट्री का हो, या फिर कोई अपोजिट पार्टी का हो, या फिर कुछ भी का, सारे बेस्ड पे पिक्चर्स बनते हैं। और उन सारे पिक्चर्स से आप क्या है, उसका जो भी उसके जो एक्टर्स हैं, उसकी उसके एक्टिविटीज़ जो देखते हो, एक्टिंग जो देखते हो, उससे क्या है, बहुत कोई कॉपी करने का कोशिश करते हो, ठीक है। यदि आपको वो इफ़ेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, तो आप उसे कॉपी करते हो, और उसके बारे में जो थिंकिंग है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। यदि आप उसके बारे में गलत सोचते थे और उस मूवी के या पिक्चर्स के देखने के बाद आपकी जो व्यूज़ हैं, आपकी जो ओपिनियन है, वो उस बेस्ड पे चेंज हो जाती हैं। तो ये सब तो उसका असर है ना। तो इस तरीके से आपको मीडिया जो है, सिनेमा जो है, वो आपके व्यूज़ पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, आपके ओपिनियन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं, मूवीज़ जो हैं, सिनेमा, वो आपको अच्छे मैसेजेस देते हैं किसी बेस्ड पे। जैसे कंट्रीज़ के विषय में अच्छे देते हैं मैसेजेस कि आपको क्या इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन था, और इस मैसेज के बेस्ड पे आपका ओपिनियन किस कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What are the different means of print and electronic media? So your answer is the means of print media are newspaper, magazine and books. Okay. The means of electronic media, television, cinema, internet. तो मीडिया जो है, आपको मीडिया जिसके थ्रू आप कुछ भी नॉलेज गेन करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसके लिए आपका 2 मीडियम है। क्या है? एक है प्रिंट, देन एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट के बेस्ड पे आप क्या देखते हो? न्यूज़पेपर। डेली जो न्यूज़पेपर से बहुत सारे न्यूज़ आप गेन करते हो, उसकी जानकारी मिलती है। मैगज़ीन, बहुत सारे मैगज़ीन में भी आप पढ़ के हो, तो ये क्या है? रीडिंग पार्ट है, पढ़ के आप इसके विषय में समझते हो। देन बुक्स, बहुत सारे बुक से आप जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, किसी भी विषय पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको जानकारी मिलती है, ये सारा कुछ होता है। देन नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न के थ्रू आप क्या न्यूज़, पिक, मूवीज़, सारा कुछ आप देखते हो। सीरियल्स जो देखते हो, सीरियल देखते हो, फिर आपको बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ वाले मूवी देखते हो। सिनेमा जो है, सिनेमा के थ्रू भी आप बहुत सारे मैसेजेस आप गेन करते हो, नॉलेज गेन करते हो, इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। देन इंटरनेट, इंटरनेट जो है सबसे बड़ा मीडिया है। इसके बेसिस पे आप अप टू डेट रहते हो, एक एक मिनट का आपको न्यूज़ सब कुछ मिलते रहता है। देन आप कुछ भी कभी भी, बहुत पहले की बातें भी, रिसेंटली भी, देन अभी करेंटली जो हो रहा हो उसके बारे में भी आप नॉलेज गेन करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो। तो ये दो जो पार्ट हैं, प्रिंट देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे सारे में जो ये सारे पार्ट्स आते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स। देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What other basic rights and linked with the right to information? So your answer is right to freedom of speech and expression, right to education. Okay, ये सारा आपका अधिकार है इसके, है ना। आपको राइट है अपनी आज़ादी के लिए, स्पीच देने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। देन शिक्षा का भी आपको राइट है, अधिकार है, आपको हक है आपको लेने का। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? अब आप देखो,
मीडिया देन टेक्नोलॉजी एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। यदि टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करेगा तो आप मीडिया की इतने सारे सोर्सेज कैसे मिलेंगे। और इंफॉर्मेशन के जब सोर्सेस मिलते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आपका बहुत हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहे तो आप मीडिया कोई भी सोर्स नहीं, इंटरनेट यदि आपके पास नेट नहीं चले तो फिर आप ये कोई भी न्यूज़ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे आप मोबाइल ही लो, मोबाइल पे यदि आपका नेट नहीं चलता है तो आप कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं जानकारी मिल सकता है आपको। तो इस तरह से दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आंसर, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द डिफरेंट वे, द फॉलोइंग वे। ओके, पार्ट 1, technology has improved the efficiency of media and media update is on the advance in technology, whether it is a new form of internet connection or dipoles। अब आप देखो दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि मीडिया जो है वो अपडेट किसके बेस पे होती है, टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होगा, जितना इम्प्रूव होगा, उतना मीडिया भी आगे आएगा। मीडिया में ये सारे जो है वो फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मीडिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। देन क्या होता है, जब आप कोई भी नेट से आपको इन्फॉर्मेशन जो मिला तो इससे क्या हुआ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। और टेक्नोलॉजी को किस का इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा, मीडिया के बेस पे, मीडिया के चलती ही वो भी डेवलप कर रहा है। मीडिया में जितना इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश किया जाएगा, टेक्नोलॉजी भी उतना ही एडवांस होता जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 2 B. For example, media use digital technology to provide in good quality of sound and pictures as well as influence our thinking। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए आप देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या है, जो पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है, साउंड अच्छे आते हैं, तो इन सब में क्या है, आपकी सोच भी बदलते हैं। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा अचीव करोगे, उतना नॉलेज गेन करोगे। सी, media is this way help us to think on global level beyond the narrow boundaries of our country। तो जितने भी बेस्ड हैं वो क्या है, मीडिया के बेस्ड है। वो क्या है, टेक्नोलॉजी और मीडिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जितना इस मीडिया में डेवलपमेंट होगा उतना टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा, और जितना टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा उतना मीडिया में भी आप सारा कुछ अपडेट होते रहेंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ। Your answer is, media is the main sources of information to create awareness among the common mass and make them enlightened citizen। It create public opinion about the burning issue of the country, expose scandal and build the confidence of people। We learn about the working plan and program that the government is undertaking, their successful implementation or failure। Now our next question number 3, describe the role of media in a democracy। So your answer is, in the democratic country, media play an important role in creating awareness and enlightened citizen। Indian media has been successful in creating public opinion about the bridge burning issue, exposing scandal and building the confidence of the people। It also ensured that the political power, other parties and powerful groups should not step beyond their limits। Our next question, question number 4, in what way does the media bring the problem of the common man to the forefront। Okay, तो इसका क्या है कि आपको कैसे जो है
किस तरह से मीडिया जो है सारे प्रॉब्लम को आपके सामने लाती है, कॉमन सबके सामने लाती है। किसी भी प्रॉब्लम को पूरे सबके सामने, हर एक पर्सन उस चीज़ को जाने, उस तरीके से कैसे मीडिया रोल करती है। तो आप देखो, जैसे कि कुछ भी यदि गलत भी होता है, जैसे कि कुछ फ्रॉड भी होता है या फिर कुछ भी, तो मीडिया क्या करता है, उसको पिक्चराइज देन वीडियो के द्वारा उसको दिखाया जाता है। यदि आपको अनफॉर्चुनेटली यदि वीडियो नहीं बना है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको वीडियो तैयार किया जाता है। जैसे आपको न्यूज़ में भी जैसे आप देखोगे तो क्या किया जाता है, जैसे आपके बारे में, उसके बारे में कुछ जानकारी, केवल नॉलेज है बट आप दिखा नहीं सकते हो, तो क्या किया जाता है, नाटक जैसे उसको बना के मतलब कॉपी किया जाता है, ठीक है। और कॉपी करके नाटक की तरह वैसा बना के उस एक्टिंग को उसको दिखाया जाता है, ताकि क्या है, जो देखने वाले आम जनता जो है उसे देख के समझ सके कि कैसे ये घटना हुआ। जैसे कहीं क्राइम ही होता है, तो उसके बारे में यदि पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या नाटक जैसा बना के और आपको शो किया जाता है कि इस तरह से ऐसे घटना हुई जिसके कारण ऐसा आपके सामने ये सब कुछ हुआ। तो इससे क्या होता है कि कॉमन आदमी भी जान जाते हैं। तो यही आपका है सवाल कि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कैसे मीडिया जो है ब्रिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन टू द फोरफ्रंट, मैंने कैसे सामने लाता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। मीडिया इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन हेल्प द सिटीजन्स to form opinion, learn about the working plans and programs that the government is undertaking, their sources, successful implementation or failures. The print media also help the building public opinion by the providing information to the public. Reporters, editors, editorials, and later published in the newspaper, the magazine influence the public opinion which the government cannot afford to ignore. तो आप देखिए, जैसे आपको पिक्चराइज बना के यदि मूवी की तरह उसको दिखाया जाता है, या फिर आपको पेपर में जो है वो प्रिंट फोटो लेके और उसको डाल के दिखाया जाता है, देन आपको मैगज़ीन में ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। रिपोर्टर्स जो है उस तक, जहाँ भी जो घटना होती है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ तक पहुँच के रिपोर्टर्स आपको एक एक मिनट का जो है नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं, इससे हमको क्या है, बहुत सारा नॉलेज गेन होता है, बहुत सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट भी जो है इसको इग्नोर नहीं करता है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है और इसे भी मतलब प्रोग्रेस इसमें भी करता है। तो इस तरह से क्या है कि जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हम आम जनता तक, आम पीपल तक कैसे पहुंचता है, कॉमन पीपल तक, तो ये सारा क्या है, मीडिया इसका मेन सोर्सेस है। चाहे वो आपको पिक्चराइज करके दिखाएं, या फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन रिटन में दिखाएं, या फिर आपको कुछ भी एक फैक्ट की तरह बता के आपको बताए, एनी हाउ आपको सारा मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ मिल जाता है। तो इसका मेन सोर्स क्या है, मीडिया। ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक इंडियन मीडिया इज़ फ्री? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या आपका विचार है कि इंडियन मीडिया जो है फ्री है? तो इसके बारे में जस्टिफाई कीजिए और आंसर दीजिए। यस, इंडियन मीडिया इज़ फ्री बट sometimes the government can ban the media from the broadcasting for publishing certain item to protect the interest of our country or some religious and the cultural groups. This is known as the censorship. Okay. तो इसमें क्या है कि जैसे आपको मीडिया तो है, मीडिया फ्री है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, दिखाने के लिए, उस पर कोई रोक नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभी जो है गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा देते हैं मीडिया पे। क्या? ब्रॉडकास्टिंग फॉर द पब्लिशिंग सर्टेन आइटम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। जैसे कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसपे जो गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा देते हैं कि आपको नहीं दिखाना, इससे यहीं तक दिखाना, इससे ज़्यादा आपको नहीं शो ऑफ करना है। तो उसमें क्या है, उस जगह पे मीडिया जो होता है रुक जाता है, वहाँ पर उसका जो है लिमिटेशन आ जाता है।
क्योंकि उसे इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं दिखाना है। और इस पर्पज़ से मीडिया जो है कुछ जगह पर ऐसा-ऐसा किया जाता है जिसके कारण मीडिया को जो है बैन लग जाता है इस सब बातों पे। और उससे क्या होता है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंट्री के विषय में कुछ हो तो, या फिर रिलीजियस या कल्चरल ग्रुप, इन सारे बेस्ड पे कुछ ऐसे हैं, बैन लगाए गए हैं जिसको कि आपको नहीं बताना है, नहीं दिखाना है, तो इसलिए है। बट ऐसे जो है वो मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो फ्री है। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन आंसर इज completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video, and do like, share and subscribe my video.